Hello. Hello, am I audible? Yeah. Hi, Anshul. You're audible. Uh, Good Good evening. evening. So let me give a quick introduction. So hello all of you. Today IRC in collaboration with ESS brings to you the second talk of ACT Chapter 1, that is Sanvad. ACT stands for Alumni Career Talks, and this is a new initiative of IRC, Institute Alumni Relations. So regarding Gunjan ma'am, so she is a 2014 electrical batch pass out, and she 2015. oh sorry 2015, yeah, and she worked at Citibank initially after her graduation, and after that she went for UPSC preparation, and you would be surprised to know that she is AIR 16 in UPSC CAC 2019. So over to you, ma'am. You can give your introduction. Okay. Thank you, Anshul. So, hello, everyone. I'm Gunjan Singh, and like Anshul has given a very generous introduction about me, like everyone would be surprised and all. Honestly, I was also very surprised when the results came out. And one thing I would say that I would like congratulate you all, like for the very thing that you guys are much aware like about your goals and like what your career path would be, because at your age I was pretty clueless like about what to do. I had some rough sketch in my mind regarding my career, but I had not thought how it would pan out. Acha, one thing, Anshul, can I switch to like Hindi in between? Can it go that way? Is Yeah, it yeah, okay? sure. Okay. Definitely. Hmm. ठीक है, तो that is how I'll start, and basically let's keep it a very live conversation, rather than me speaking about my journey or my experience. It would be better if questions come from the other side, because then we can like maneuver it better, and I would be able to understand the demand of this whole chat and conversation, and that would be more beneficial to everyone. Just giving a very brief introduction about myself, I would say that after 2015, when I graduated from Roorkee, I worked as a software developer in Citibank for a year. Then I had like some of my experiences in college in Roorkee when I was part of NSS, and there was this voluntary group Bharat Mandan, where I had realized like my calling is somewhere in the social sector. My calling is somewhere, like maybe working for the masses, working for the people. And that got like even more entrenched, even more permanent when I worked as a software developer. And that is when I decided that it is time I should, come and prepare for civil services. For that, I went to Delhi. And in these like 3 4 years of struggle, like from 2016 to the results came out, like two failed attempts, and like the last third and the last successful attempt, I cleared this examination. And uh, so like, okay, talking about it, that I cleared the examination in 3 years, but when I look back, these 3 years have been one of the very important 3 years of my life, these 3 4 years, because I guess this examination, and for all of us who will be preparing and who will be entering into this phase, we all will realize that this examination will not just enhance our our knowledge or our wisdom or about the current happenings. It will there will be a certain metamorphosis within us also. There will be a very drastic change in the personality and the kind of person we'll become. And that is what I can speak from my own experience, because when I started this preparation, I had always thought of कि एक अटेम्प्ट में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बस एक और अटेम्प्ट दूंगी, अदरवाइज इतना एफर्ट नहीं मतलब देना है, इसमें इतना नहीं करना है, और तब तक तो हो ही जाएगा. But it was only later that I realized कि life is not what you plan for, like Amazing. plan out कि ऐसा ही होना है. Life comes with its uncertainties, and when failures come and when failures strike, then you realize कि oh, it has happened, I failed. What next? अब क्या करना है?
the process will make you very humble. And believe me, if any of you is planning to go in this कि prepare करना है, आगे तैयारी करनी है, तो एकदम दिल खोल करके जाना, have no apprehension, have no worry. When I say have no worry, it is easier said than done, क्योंकि you will face worries, you will face anxieties every other day. किसी भी दिन Facebook खोलोगे, social media का कोई भी platform खोलोगे, you will see your friends, your colleagues, everyone else doing, wonders, and you will find yourself stuck in that process कि कहाँ पर हूँ मैं. So always know कि ठीक है, this too shall pass. ये एक प्रिपरेशन है, विलिंगली एंटर किया है, एंड ऑलवेज नो व्हाट योर कोर मोटिवेशन इज, क्यों एंटर किया है, क्या क्या सोच करके इस प्रोसेस में इतना एफर्ट डाल रहे हो, एंड विद दैट थिंग इन माइंड, एक दो जितना भी अपना एक प्लान्ड अटेम्प्ट सोच रखा है कि इतना टाइम देना है, विद दैट गो अहेड एंड जस्ट गिव योर बेस्ट. So this is like what I would say about like my own experience that I had during this preparation. If like anyone would like to talk more specific about the prelims, the means, the interview part, like the do's, don'ts, or specific strategies, or anything about the emotional side, like how to face the struggles or anything, I think let's open it to questions, and that way it would be even more better interactive. Or Anshul, you can only like ask questions from your side if you have like collaborated or you collated some questions. Yes. So we floated a form and we found some of the questions. If anyone in the meeting has any current questions, so they can put that in the chat box. We will take that soon. All right. So I think we should move to the Q&A session now. Okay. So the first question is, what type of internship is suitable if I want to choose civil services as a career opportunity? Okay, my God, like this is really very surprising for me. I'm pleased by this question actually कि इतना aware हो तुम लोग इन सब चीजों में कि कैसे इसको pan out करना है. But honestly, I would say कि internship या ऐसी चीजें doesn't matter much. Like I had my internship in Schlumberger, the oil service provider. और आई वर्कड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर में वापस से आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन. सो इंटर्नशिप एज सच इज ऐसा कुछ होता नहीं है कि वहाँ इंटरव्यू में दिल आस्क यू कि इस पे इंटर्नशिप किया है कि नहीं तो ही होगा. इट्स नॉट अबाउट दैट. पर हाँ, इंटर्नशिप अगर करना है, लाइक इफ यू वांट टू नो कि व्हाट द जॉब एंटेल्स या फिर क्या एक आगे की जर्नी कैसी होगी, तो मे बी अगर इतने इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन वर्क समवेयर, यू कैन डू समथिंग इन द सोशल सेक्टर. एंड आई गेस अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स आर आल्सो बीइंग इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्रीज नाउअडेज, जहां पर 6 to 8 weeks का you can work with some of the ministry या some of the state governments or central government for that matter, और उस पे you can work in the social sector, और उससे you can realize कि is it really your calling, मतलब किस वजह से आना, ये काम करके अच्छा लग रहा है कि नहीं. So otherwise internship doesn't matter much. All right. So I think we should move to the next question. So the next question is, why you have switched to civil services? Like, what was the main reason to switch to civil services? Okay. So a very generic question that like I have been hearing it for a long time. I guess ये जो एक question होता है ना, यही अपना एक कोर मोटिवेशन होता है. दैट इज वही जब मैं बात अभी कर रही थी कि दैट देयर शुड बी समथिंग, सम एंकर दैट विल होल्ड यू इन योर टफ टाइम्स. तो my very reason for joining civil services was कि जब मैं when I was working when I visiting villages, I was part of this RT awareness cell, rural transformation awareness cell in NSS. और फिर भारत वंदन में there was this voluntary group भारत वंदन में, और हम लोग एक पास का भंगेड़ी गांव है जो पीछे है अपने कॉलेज के. So we used to go there, and that is when I realized कि जब वैसे गांव में काम करते थे या फिर बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाते थे, या वो बेसिक नुक्कड़ नाटक भी करते थे,
and there खासकर in भारत अंदर when I personally got this thing, जब मैं बच्चों के साथ बैठती थी या फिर when I interacted with women, and there was this one thing, एक national talent सर्च एग्जामिनेशन की तरह हमने BTSC किया था, भंगीरी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, और उसमें बच्चों को पूरा लाए थे, एंड लाइक वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क देयर। और आई रियलाइज कि एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज वन किड जो सुबह से बैठा हुआ था, ही न्यू कि मैंने भी कुछ खाया नहीं है, सो ही वेटेड देयर अपने टिफिन के साथ, और शाम में व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक ऑन माय साइकिल टू द टू कॉलेज, तो वो मुझे रोक के बोलता है कि दीदी देयर इज दिस मैगी फॉर यू, मैं सुबह से लेके रखा हुआ था आपके लिए। सो देयर आर दीज टीनी टाइनी मोमेंट्स, एंड आई दोज वर सो सैटिस्फाइंग एंड लाइक सो सोल सैटिस्फाइंग, एंड आई realized कि this is something I really like to work, and this is where like कैसा भी काम रहेगा, like कितना भी you can say challenging रहेगा, this kind of challenge would always thrill me. So that is when I decided that I'll switch to civil services preparation. Right. So that is a wonderful story. Okay. There is a question. Is it possible to crack the exam directly after college? Of course, there are many people who have cleared it in their first attempt and directly after college. So इस एग्जाम में बस एक क्वालिफिकेशन, एक बार होता है कि देयर इज दिस एज बार एंड देन देयर इज दिस मिनिमम एज इतना होना चाहिए और एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो डेफिनेटली क्यों नहीं हो जाएगा। देयर सो मेनी एग्जांपल्स आउट देयर। So what should be the strategy for the four long years? If someone is so sure कि एग्जाम ये कॉलेज के ग्रेजुएट होते होते ही एग्जाम लिखना है, लाइक यू ग्रेजुएट समवेयर अराउंड लाइक मई जून और उसी टाइम ही प्रीलिम्स भी लिख रहे हो, सो बी रेडी फॉर दिस प्रोसेस कि पहले से ही तैयारी शुरू कर दो। और फॉर समवन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच आई वुड से you need to give like good 2 years, 2 to 3 years in this process. So I would say start with newspaper reading. Newspaper में there is Hindu, there is Indian Express. Start with that. क्योंकि starting में ही if you'll load up with books and all kind of fancy material, तो वो सिर्फ pile up हो जाएगा and nothing substantial will come out from it. तो start करो with newspaper. जब 2-3 महीने newspaper पढ़ लिया and you'll start like realizing, या you'll get acquainted कि क्या issues चल रहे हैं and how to like what are the current happenings, अच्छा क्या क्या sectors हैं, क्या क्या chapters हो सकते हैं, and that is when you start gradually with NCERTs. 2-3 महीने के newspaper के बाद switch to NCERTs for all the basic subjects like history, geography, economics, polity, सभी environment, सभी सबके NCERTs from 6 to 12 उनको अच्छे से कर लो। and then in this process you'll realize newspaper के साथ साथ और NCERTs पढ़ने के साथ साथ you'll realize कि कोई एक ऐसा subject होगा जिसमें ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, that would be like something जिसमें और मन कर रहा होगा कि you want to delve deeper into that subject to know more about it. And that is when you can decide कि अच्छा इसे optional रख सकते हैं। For optional you can go to that list, वो यूपीएससी सिलेबस का लिस्ट है और उसमें से ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, उसमें से देख सकते हो सारे ऑप्शनल्स कौन से हैं, उन सबके हर ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक सिलेबस देख सकते हो। फ्रॉम दैट यू कैन कट डाउन टू 5-7 ऑप्शनल्स कि ये 5 सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं, फिर उनकी स्पेसिफिक एनसीईआरटी या फिर कुछ थोड़ा उनके बारे में किसी टॉपर स्पेसिफिक ब्लॉग पढ़ सकते हो टू सी कि क्या क्या इसमें पढ़ना हो सकता है, क्या आगे आ सकता है, और दैट इज व्हेन यू कैन डिसाइड कि ये ऑप्शनल भी मेरा फिक्स है। Now, when there are 3 things: current affairs that has to go on regularly, there has to be the GS portion, the static portion जो NCERT से आएगा, कुछ एक आध उसके NCERT कंप्लीट होने के बाद एक एक्स्ट्रा लेवल एडअप होगा लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, और तीसरा होगा ऑप्शनल। तो have this balance कि कॉलेज में अगर if you are willing to give your time to this, तो उस पे अच्छे से फिर टाइम देना। मे बी अगर इतना श्योर हो कि फर्स्ट ईयर से दे सकते हो तो तब से दे सकते हो, लाइक जितना पहले से स्टार्ट करोगे उतना यू कैन लाइक गिव योर टाइम प्रॉपरली टू इट। बट सेइंग दिस आई वुड से वन थिंग गाइज,
अच्छी चीज है कि यू ऑल आर लाइक वेरी मच अवेयर कि ठीक है इसके बाद क्या करना है. But believe me, college time would be the best time of your life. So whatever you do, just like don't compromise on the fun part, on the better part, and like never in this process, never be very hard on yourself. कि सब छोड़ करके बस यही कर रहे हैं. Because like I realized back in college, I had like stood for elections. मैं से 2 या 3 बार I fought elections. I won elections. I was the CCB president also. मैं गांव भी जाती थी और बाकी दोस्त वगैरह भी होते थे. घूमने भी कितनी बार गए हैं और ठीक ठाक थोड़ा बहुत क्लासेस भी किए. सो समझ रहे हो ना, देयर हैज टू बी अ बैलेंस, अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स यू और shapes your personality in the end. तो हमेशा have some balance. कभी भी चाहे कॉलेज के टाइम तैयारी करो या कॉलेज के बाद तैयारी करो, ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ बैलेंस. और बहुत ही प्लान्ड तरीके से चीजों को करना. जैसे मैंने अगर 3 चीजें बताई हैं, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल और जीएस, तो इस पहले इस बेसिस पे डिसाइड करना. मेक अ ईयरली प्लानर कि 1 साल के आखिरी तक कितना हो जाना है. ब्रेक इट डाउन टू हाफ ईयरली, देन ब्रेक इट डाउन टू मंथली प्लानर्स, और फिर गो अहेड विद दैट. और फिर उसमें भी ब्रेक इट चैप्टर वाइज. रोज सुबह अपना एक डेली प्लानर बना लेना कि आज इतना चीजें करनी है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे मे बी यू कैन असेस कि कितना हो पाया, कितना नहीं हो पाया. यू नो व्हाट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज, और and then you can go ahead with your preparation. All right. So there is one question that if I prepare from now onwards for the current affairs, but when I will give my UPSC examination in suppose 2 or 3 years, so at that time that knowledge won't be relevant in my current affairs. So should we do that now or we should do something else? I understand कि अपने को ना मेहनत बहुत कम करने का मन करता है. It is always that कि बस कभी कभी का पढ़ ले कि उतने से हो जाए. और वो जो अपना एक आईटी माइंडसेट भी आ चुका है ना कि वो बेयर मिनिमम में काम करने वाला. सो वो काफी टाइम तक एक रेजिस्टेंस रहता है दिमाग में कि बस कितना कर लें, कितने से हो जाए. बिलीव मी, ये थोड़ा सा इसमें इस चीज को रेजिस्टेंस रहेगा, पर थोड़ा सा इस पे भी वी नीड टू वर्क अपॉन. जैसे कि अगर इफ यू टॉक अबाउट करंट अफेयर्स पर से, तो इतना जान लो कि अगर मैं अगले साल पेपर दे रही हूँ तो उससे 12 महीने पहले तक का तो पूरा फॉर श्योर एक एक चीज हमें करंट अफेयर्स में पता होना चाहिए. But the kind of examination this is, and the pattern of the examination, the kind of questions being asked, अगर 2-3 साल पहले के questions देखोगे, अगर if you talk about prelims, questions asked are कि recently this was in news, and then there would be question with 4 options. और अगर किसी ने सिर्फ 12 महीने का पढ़ रखा होगा तो डेफिनेटली वो रिसेंटली समझ नहीं आएगा कि मैंने तो 12 महीने में मुझे दिखा ही नहीं वो कहाँ वो रिसेंटली है. सो द क्वेश्चंस आस्क्ड आर ऑलवेज 2-3 साल पहले के भी हो जाते हैं. और अभी से अगर कोई पढ़ना शुरू करता है तो इतना रटो मत, पर कम से कम एक नॉलेज तो होता रहेगा कि अच्छा ये स्कीम चल रही है, ये इशू चल रहा है. और इस तैयारी में कुछ भी जो पढ़ रहे हो, नथिंग विल गो टू वेस्ट. ऐसा नहीं है कि अभी से पढ़ के क्या फायदा अगर मुझे 2024 में देना है, 2023 से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा या करूंगी. ऐसा नहीं करो. अभी से ही जो भी पढ़ोगे, इट विल ऑलवेज हेल्प यू. Yeah. So we have another question. Any coaching and reference material you would like to suggest? Okay, so again I would say कि ये coaching और I'll tell my own, पर I'll tell you few other sources also, and with a word of caution कि अभी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी इतना ज्यादा आ चुका है कि there is flooding of materials and sources, and every other material looks very fancy. कि ये भी अच्छा लग रहा है, इसने तो और कंसाइज तरीके से बता दिया है, इसमें तो और भी अच्छे तरीके से दिया हुआ. सो ऑलवेज अपने जो भी मटेरियल रखना, जो भी अपना पढ़ने का सोर्स रखना, उसको बहुत ही कंसाइज एंड शॉर्ट रखना. सो टॉकिंग अबाउट द कोचिंग मटेरियल, मैंने 2016 में ज्वाइन किया था वाजीराम एंड रवि. तो वहाँ के जो मेरे क्लास नोट्स थे और जो उनके येलो बुकलेट्स होते हैं, उनको मैं ऐसे, जैसे उसमें भी इकोनॉमिक्स की येलो बुकलेट थी और एक आध सब्जेक्ट की येलो बुकलेट, अदरवाइज उनके क्लास नोट्स को ही मैंने रेफर किया था थ्रू आउट.
और इन माई दीज 3 years आई ऑलवेज ensured कि मैं कोई भी कोचिंग या जो भी मटेरियल पढ़ूं बस उतने ही रखूं। जैसे मैंने करंट अफेयर्स में विजन आईएएस के मंथली बुकलेट्स उनसे पढ़ाई की थी, और मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में आई यूज्ड टू गो थ्रू न्यूज़पेपर्स, बट देन आई थॉट कि न्यूज़पेपर्स मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहे थे, एंड टू कट टाइम मैंने पूरा का पूरा रिलाइड ऑन विजन आईएएस। सो आई इंश्योर कि मैं विजन आईएएस ही पढ़ूं पूरे 3-4 साल। और रिगार्डिंग कोचिंग मटेरियल, मैंने अपने वाजीराम के ही क्लास नोट्स देखे थे। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रही हैं, वही एनसीईआरटी, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम। आई गेस मेरे सोर्सेज इतने ही रहे हैं, मोर और लेस। लाइक आई हैव नॉट डाइवर्सिफाइड मच, क्योंकि जितना खरीद करके ले आओगे, जितने सोर्सेज रहेंगे, वो उतना ही हमें रिवीजन का टाइम या उनको रीड करने का टाइम कम हो जाता है। इट इज ऑलवेज बेटर टू रीड अ बुक 3-4 times देन रीडिंग 3-4 books once. Yes, definitely. Okay. So what was your optional and what are your suggestions for that subject? Suggestions as in The subject you what choose kind of as an suggestions optional. कि कैसे उन्हें पढ़ना है? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, और लाइक यू आर आस्किंग अबाउट सजेशंस अबाउट हाउ टू गो विद द सब्जेक्ट, तो आई वाज प्रीटी मच क्लूलेस अबाउट ज्योग्राफी, क्योंकि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं रहा है, और विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ज्योग्राफी वाज समथिंग कि इट वाज नॉट दैट इजी फॉर मी। तो मैंने उसके लिए आई स्टार्टेड विद कोचिंग ओनली। तो वाजीराम एंड रवि जब लगाया था, तो उसमें शबीर सर के ही कोचिंग किया था उसमें, और दैट आई डिड। वो 3-4 महीने की कोचिंग थी। उसके बाद आई डिड सम सेल्फ स्टडी, एंड इन माय लास्ट अटेम्प्ट, द थर्ड अटेम्प्ट, आई जॉइंड हिमांशु सर्स 500 प्लस प्रोग्राम, और आई फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल। इसमें ये था कि ही कवर्ड कंप्लीट सिलेबस, और हर सिलेबस के हर टॉपिक के 3 या 4 क्वेश्चंस ही मेड अस डू, और उन सब में इन दो 3 or 4 questions he helped us cover the entire syllabus. So that was a very good thing. और there were some books जो कि जैसे कि माजिद हुसैन हो गया, ये सब भी था मेरे पास, but then I ultimately realized कि the paper and the questions are getting very dynamic. तो उसके लिए एक चीज ये रियलाइज किया कि अपना जितना हम स्टैटिक और उन सब पे फोकस करेंगे, दैट उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं है। सो be it any optional, what I've realized is कि paper 1 will be theoretical, but paper 2 will be more practical and more application based. तो उसके लिए my suggestions to anyone, like अगर वो GS भी कर रहा है, वो geography optional है, तो खासकर geography optional में diagrams, maps, the flow chart, the pictorial part, it plays quite an important role. Geography is all about space. So when I say space, there need to be efficient utilization of that space in the paper. तो मैंने उस पे काफी अच्छे से फोकस किया था। And when I say about the application part, so rather than just focusing on the theories and the bookish material, I used to go through the यही जो current affairs की booklets होती थी, तो उसमें there would always be some kind of examples or case studies जिन्हें मैं highlight कर लेती थी, and I used to pen them down somewhere, और वहां से I used to use them in my answers. और जैसे मैप बना लेना, या फिर जो भी क्वेश्चन है उसको एक ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के कीवर्ड्स या उनके डेफिनेशन से उन चीजों को समझाना. सो दैट इज व्हाट आई इनकलकेटेड इन माय ऑप्शनल, एंड दैट इज आई थिंक एवरी ऑप्शनल वर्ड लाइक वुड डिमांड दिस. तो जो भी जीएस स्पेसिफिक पढ़ो, बस उसको अपने ऑप्शनल स्पेसिफिक वर्ड्स, कीवर्ड्स, जार्गन्स. Hello. Ma'am, your voice is breaking in between a little bit. My voice is hello. Can you hear me now? Yeah. Now it is all right. Actually, I've logged in from my phone, so कोई अगर like if I get a call or something, then वो थोड़ी देर के लिए voice break हो जाता है. But was I audible till now? Yes.
Okay, so we have this question. You are from electrical engineering, right? And the people Yes. from the core engineering background, like electrical, civil, so they can go for UPSC, ESC also. They can become an IES officer. So Yes. why did you choose IAS over IES? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल नहीं लिया था, तो मैं ईएस नहीं दे सकती थी. अगर इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल लिया होता तो डेफिनेटली आई कुड हैव लाइक गिवन ईएस का भी एग्जामिनेशन. अदरवाइज ऐसा कुछ वो नहीं है कि एएस ओवर ईएस. इट्स जस्ट दैट कि आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर ईएस बिकॉज आई हैड नॉट टेकन इलेक्ट्रिकल एज ऑप्शनल. मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी देन इट, और गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट, अगर उतने ही टाइम में अगर मुझे एएस का एग्जाम लिखना है तो ईएस के लिए पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं था मेरे पास. So there, one more question can arise that why didn't you choose electrical engineering as your optional subject? Okay, so my story is quite funny. Let me not go into that, but definitely ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी को ऑप्शनल इंजीनियरिंग भी उसी में ही किया है तो ऑप्शनल भी वही रखे. मतलब ऐसा नहीं है. मतलब यू हैव टू रियलाइज कि ऑप्शनल विल बी समथिंग जो विल बी वेरी डियर टू हार्ट. मतलब ऑप्शनल से प्यार करना पड़ेगा इस प्रोसेस में. तो अब जो भी, अगर मैंने, मेरे केस में तो ज्योग्राफी वाज माय एक्सीडेंटल लव. वो मुझे मिल गया था. आई हैड नॉट एक्चुअली चोजन ज्योग्राफी. देयर इज नो सच बार टू इट. अगर ऑप्शनल, अगर किसी का वो ही है इंजीनियरिंग उसी में, तो आई गेस इट विल गेट इवन मच इजियर कि उस जितना पढ़ा हुआ है उसी में थोड़ा सा बस एड ऑन और करना होगा. और उसी को अगर ऑप्शनल के तौर पे लेके गए तो देन इनफैक्ट देयर विल बी मोर टाइम फॉर जीएस, एसेज एंड अदर स्टफ. Yeah. So there is a question that you did coding along with your campus engagement. Yeah. Yes. That is why you got a software. Not exactly. I software I did get, but not exactly. I knew like bit of Java and I guess C++. So that just, और जो मेरा इंटरव्यू वगैरह था, that was more of algorithm based and everything. So that helped me get through it. Otherwise, like I had not mastered in coding much during my college time. Okay, so the question from the people is that there is a peer pressure of friends who are doing coding and they would be taking a job in the corporate sector from the campus placements, and we are preparing for this UPSC. So how did you manage that peer pressure of your friends getting succeeded in life and you are not able to manage? The thing in this, like your question, I guess ये comparison ना life long चलता रहता है. वो जो एक शर्मा जी के बेटे वाला जो एनालॉजी है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है कि देयर विल बी someone, something doing better than you, doing excelling in his or her life. But always know कि ये जो peer pressure है और जो एक societal एक norm है, उसमें अगर फंस के रहना है तो always there will be एक वो रहेगा, एक mundane life स्ट्रक्चर, एक करियर पाथ हमेशा रहेगा. बट इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू आर मच पैशनेट अबाउट समथिंग कि कोई बात नहीं, अभी सब लोग अच्छा कर रहे हैं, अभी सबके पास सब हो जा रहा है, अभी आई एम एट स्क्रैच, कंप्लीट जीरो अगर बोलो तो कोई बात नहीं. आई हैव माई ओन करियर पाथ, आई हैव माई ओन ग्रोथ कर्व, और मैं उसी हिसाब से ही करूंगा या करूंगी. सो बी वेरी सिक्योर इन योर ओन पोजिशन. विद इनसिक्योरिटीज, बिलीव मी, पूरे मन से ना तो पढ़ाई हो पाएगी, प्रिपरेशन हो पाएगा, और ना ही दूसरा जो एक पाथ है, जो दोस्तों वाला पाथ है, एक प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट वाला पाथ है, ना ही उसको चूज कर पाओगे. सो सबसे पहले वही जब मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि द कोर मोटिवेशन थिंग, सो फ्रॉम दैट कोर मोटिवेशन का मेरा मतलब ही यही था कि यू आर सो श्योर इन इट कि जो भी हो जाए, मुझे जब इसी चीज में ही अच्छा लगता है, या फिर जब यही मेरी कॉलिंग है, या फिर दिस इज समथिंग दैट आई विल डू,
तो कोई दिक्कत नहीं है. एंड बिलीव मी गाइस, तुम सब आईआईटी से हो, यू आर वेल क्वालिफाइड. व्हेन यू नो कि ये वाली चीज प्रिपरेशन टाइम 1 2 साल 3 साल जितना भी दे रहे हो, उसको दिल लगा करके दो. उसके बाद यू नो कि वेन एवर you'll डू द प्लान बी थिंग, अच्छा ही करोगे. यू आर सो वेल क्वालिफाइड. Have confidence in you and in your abilities. So don't bring such kind of second thoughts. Otherwise, in these second thoughts, जो पकड़ा हुआ है, जो रास्ता चूज किया है, वो खुद नहीं, उसको ही नहीं अच्छे से कर पाओगे. I guess. Otherwise, बहुत से random comparisons and you know these things keep coming. जब तैयारी भी कर रहे होगे तो there would be times when you would assess कि ये कहीं गलत तो नहीं कर लिया है, या फिर ये करना भी चाहिए था कि नहीं. So some such kind of thoughts would always keep coming to you. My like two cents on this would be कि like these thoughts came to me too कि college तक तो अच्छा था, नौकरी भी अच्छी थी, अभी stagnant हो चुके हैं एकदम. What to do? So there were 2 3 things that I did. I always surrounded myself with with people जो पॉजिटिव, जो बातें करते हो, who have some kind of optimism in life. Like जो कॉलेज में 50 लोगों का एक दोस्तों का ग्रुप होता था तैयारी के टाइम, I had just 3 4 with me, but they always like had my back. They always told me कि look, you are doing good, you are doing great. Even when you are facing such failures, one day you'll do great. तो उस चीज को हमेशा अपने पास ऐसे लोगों को रखना, have your like family connected to you, उनसे बात करते रहना. एंड द सेकेंड थिंग, लाइक जो लोग बोलते हैं ना कि कभी भी प्लान बी मत रखो दिमाग में, या फिर कभी नेवर थिंक अबाउट कि कुछ बस एक ही चीज पे फोकस करो, कभी कोई दूसरी चीज के बारे में ना सोचो. आई वुड डिफर फ्रॉम दैट. क्योंकि व्हेन एंजाइटी, व्हेन पैनिक सेट्स इन, तो हमेशा एक प्लान बी हमारे पास एक दिमाग में जब रहता है, व्हेन सिट इन अ कॉर्नर एंड टेल योरसेल्फ कि लुक, अभी इसके लिए ही टाइम अलॉट किया था, यू would give this much time to UPSC preparation. ये नहीं होता है तो कुछ भी कर सकते हैं. You can go back to the corporate sector. अगर social sector में ही काम करना है, you can attach yourself with the ministries. You can go for MS, GMAT कर सकते हो, GRE दे लो. मतलब there's so many options. तो हमेशा have that at the back of your mind. फिर उसके बाद वो दिमाग में है, उसके बाद give your 100% to this time. कि अभी 1 2 साल बस मुझे ये अच्छे से करना है. एंड डोंट गो इनटू कंपैरिजंस. एवरीवन हैज his or her own different career growth. तो उस पे पूरा फोकस करना. Okay, so you have very well explained that answer. And we have another question. Do you think there is a need of test series for this preparation? And if there is a need, then which test series should I buy? हाँ, एग्जैक्टली. टेस्ट सीरीज इज आई थिंक अ मस्ट गो फॉर दिस एग्जामिनेशन. और टेस्ट सीरीज के लिए आई वुड से कि कोई भी चूज कर लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज का एक मोटिव ये होता है कि वो डिसिप्लिन रखता है अपने को. गिवन अंदर से ही वी आर सो लेजी एंड प्रोक्रेस्टिनेटेड कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो हमेशा एक अपने दिमाग में रहता है. तो टेस्ट सीरीज कीप्स अस ऑन दैट डिसिप्लिन ट्रैक. तो मैंने विजन आईएएस का ज्वाइन किया हुआ था, और जब प्रीलिम्स ओवर हो गया था मेरा, तो देन उसके बाद आई हैड जॉइन दिस 8 टेस्ट का टेस्ट सीरीज. देयर आर फ्यू अदर टेस्ट सीरीज गोइंग on in the market, like forum IS है, Vajiram Ravi's also test series is good, Vision IS है, I guess Shubhra Ranjan and Educhemies, there are like next IS, so there are a lot many test series going on in the market. You can choose any. बस उसको ensure ये करना है कि timely देना है. जो भी टेस्ट पेपर दो, आई एम टॉकिंग अबाउट मीन्स है, कोई भी जो भी टेस्ट दो उसको एकदम एक टाइम लिमिट में दो. अपना एक हमेशा एक टाइम ग्राफ बना लो कि विद इन 7 days यू हैव टू गिव दिस टेस्ट, अगले 7 दिन में ये टेस्ट देना है, और उसका पहले पढ़ाई करके रखो. वेन एवर यू राइट द टेस्ट, उसके जो मॉडल आंसर हैं, गो थ्रू देम, रियलाइज कि अच्छा ये पॉइंट आई हैव मिस्ड, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल दैट आई कुड हैव यूज्ड, और अ वेरी गुड केस स्टडी दैट यू कम अक्रॉस. Note them down somewhere, और उसी मॉडल आंसर में highlight them. So all of this will help you, in evaluating your own performance and helping you, enrich your answers and write good and wonderful answers. So test series is a must, I would say. Go for it. For prelims, I had not bought any test series क्योंकि there was like the financial issues भी थे, इतना खर्च
पढ़ने का मन नहीं था, एंड यू इजिली गेट दीज टेस्ट सीरीज इन द मार्केट, वो जिसमें तुम्हें क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी मिल जाएंगे. सो आई इंश्योर्ड कि प्री मे बी मैं अच्छे खासे टेस्ट पेपर पहले से लगा के जाऊं. इट इज नॉट दैट कि वहीं से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट देन यू गेट दैट एप्टीट्यूड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, जो हम बोलते हैं कि स्मार्ट गेस करना, या फिर how to mark the answers. तो ये when you practice these tests लगातार, then you get to know कि अच्छा स्मार्ट गेस कैसे कर सकते हैं. सो आई कैन लाइक काउंट 3-4 एप्लीकेशंस की प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज लगाने से. फर्स्टली यू नो कि वो स्मार्ट गेस वाली बात मैंने की. दूसरी यू नो कि जब भी टेस्ट पेपर लगाते हो यू एंड यू इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस, यू ऑलवेज नो कि ये वाला सब्जेक्ट मेरा अच्छा था, ये सब्जेक्ट मेरा खराब है. फ्रॉम दैट यू कैन ऑलवेज लिस्ट डाउन योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस. मतलब ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये मेरे वीक सब्जेक्ट है. इन दैट यू कैन डेल्व डीपर, यू कैन रियलाइज कि स्ट्रॉन्ग में भी ये मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, ये मेरे वीक चैप्टर्स हैं, एंड दैट इज हाउ यू कैन गो अहेड विद इट. तीसरा टाइम मैनेजमेंट. यू ऑलवेज नो कि कितने टाइम में तुम्हारा पेपर खत्म हो रहा है, हाउ मच टाइम यू गेट टू रीडू इट, टू रिवाइज इट. सो दीज आर द थिंग्स. चौथा आई वुड से कि ये जो टेस्ट पेपर्स तुम लगाते हो या जो हम लगाते हैं, इसमें होता ये है कि whenever we read some कोई करंट अफेयर्स बुकलेट पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो we have a very limited एक knowledge base होता है. But when you take test from multiple coaching sources, तो उनके अलग अलग क्वेश्चन से you get a diversity of questions, and that helps in your preparation a lot. वो क्वेश्चन सेट ही मेरे लिए मेरा फॉर्डर बन जाते थे, मेरी और मेरे एक सोर्स का, मेरे मटेरियल का. तो मैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेती थी बिफोर going for the main examination. So with these known applications and benefits, definitely always go for test papers and test series. Okay, so we had 4 points for this test series. Let us move to the next question. The question is, what should be the revision strategy, and especially for GS and current affairs? Okay, so talking about the revision strategy, I would say कि ये पूरा तैयारी ही है. The whole game is about reading, rereading, mugging up every important fact or every important concept that you come across. So revision is very important. जो भी limited sources हैं, NCERTs है, whatever your current affairs sources, उनको कम से कम ensure that before going to the examination hall, read them at least 3-4 times. अच्छे से read करो, go through them, अगर if you have sticky notes तो अपने उन्हीं booklets में you write the main points और उनको stick कर लो, या फिर उसी book में कहीं पे लिख लो. What I did for some NCERTs is that like खासकर हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए, कि दे आर फैक्ट स्टडीड अ लॉट. तो मैंने उनके लिए आई समराइज्ड ईच चैप्टर A4 शीट में आगे और पीछे, एंड दैट इज like for 12 chapters I had 12 A4 sheets in the end, and that I used to just go through them every time I would like to revise. So you can make such short notes, sticky notes, you can write them down in your book or notebook, highlight them, and with every further revision you can just go through those highlighted notes, or and with that you can you can ace up your revision. Okay, there is one question also that in during the J time when we were for the J advance, so the schedule was like we are studying for 16 hours or so, and we are having a very less amount of sleep, maybe 6 hours, maybe 5 hours, or maybe 4 hours. So what was your daily timetable in that UPSC preparation days? Okay, so don't mix it up with your JEE preparation, पहली बात तो, because this examination will be a marathon thing. कि even अगर पहले attempt में भी निकल रहा है तो उसके पहले 1-2 साल पहले की एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए. So this will be a marathon thing, and as I stated earlier कि don't be very hard on yourself. ऑलवेज नो कि कोई टॉपर है, कोई आकर के बोल देगा कि मैं तो 12 घंटे पढ़ता था या पढ़ती थी, या 14 घंटे, 15 घंटे, कोई तो 24 घंटे भी पढ़ ले रहा है. बट देन इफ यू नो कि तुम बस 4 घंटे पढ़ पाते हो,
6 घंटे पढ़ पाते हो, मेक इट दैट कि दैट एज योर परमानेंट फीचर कि ठीक है मैं इतना ही टाइम दे पाता हूँ, ठीक है ना। सो ऑलवेज हैव दैट थिंग इन योर माइंड। जैसे मेरा अगर इफ आई टॉक अबाउट माई टाइम टेबल, तो मेरे लिए कुछ चीजें वर वेरी नेसेसरी। जैसे आफ्टर आई हैड लाइक फेस्ड फेलियर, जब पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट में भी आई वेंट टिल इंटरव्यू स्टेज और वो आई कुड नॉट क्लियर इट, तो आई रियलाइज कि ठीक है दिस प्रोसेस मे गेट लॉन्गर, इसमें टाइम लग सकता है। सो आई हैड फ्यू हॉबीज की I had like jogging, running, doing some kind of sketching, doodling, वो कुल्हड़ वाले पॉट्स था, I used to draw, I used to paint। तो ये सब छोटी छोटी चीजें थी that I never left। ये अपना एक टाइम निकालना था दिन में, थोड़ा बहुत I used to do that too। एक 4-6 घंटे का एक हमेशा एक टाइम टेबल रहता था जिसमें पढ़ना है। एंड रिगार्डिंग स्टडीज आई वुड से कि डेफिनेटली आई एम नॉट द मॉर्निंग पर्सन, बट जब भी उठ करके वेन एवर यू वेक अप एंड दैट टाइम आफ्टर उसके 4-5 घंटे तक यू आर लाइक वेरी मच एनर्जाइज्ड आई वुड से। तो अगर उस टाइम अगर फोन चला लिया या फिर अगर कुछ भी कर लिया इधर उधर, तो अ लॉट ऑफ योर एनर्जी वुड बी वेस्टेड। तो आई इंश्योर्ड कि मैं जब भी सुबह जितने बजे भी उठूं, आई वुड इंश्योर कि सुबह उठते ही मैं 2 या 3 घंटे का एक डायरेक्ट स्लॉट एक पढ़ाई का बनाती थी, एंड आई वुड डू समथिंग टैंजिबल इन दैट, सब्सटेंशियल इन दैट। या तो ऑप्शनल पढ़ लिया या फिर करंट अफेयर्स पढ़ लिया, then I would take some break and go ahead with that. So my study pattern was mixed with breaks and studies। जैसे 40 minutes पढ़ने के बाद 5-10 minutes का break, and that is how I used to go with it। और साथ के साथ ही have some time to chill, like talk to your friends। I had a lot of my friends and seniors in Gurgaon। I was there studying in Delhi, तो once in a month or so I would take a break, I would go visit them। तो ये सब चीजें हैं, और don't become robotic or mechanical in the process, don't lose yourself in the process, keep it a very happy thing, keep it a very healthy learning process। तो एक जो पेसिमिज्म होता है या फिर जो एंजाइटी होती है वो भी नहीं सेट इन करेगा। देयर विल बी टाइम्स यू विल फील low, but then with a very clear schedule, with a very clear strategy in your mind, हमेशा strategize your preparation। I always had a yearly planner कि एक साल की एग्जाम के पहले पहले तक इतनी चीजें आ जानी चाहिए। I broke it down to half yearly, monthly, weekly planner, and I used to go ahead with that। Always have some short goals, some short victories I would say, कि अगर कोई टेस्ट दे रहे हो and if you're doing good in it, then it is in itself a very good achievement। तो and always अपने आप को ऐसे उसमें पैम्पर करना, सेलिब्रेट दैट वेरी स्मॉल विक्ट्री और गोल, एंड ऑलवेज रियलाइज कि एवरी डे जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, जस्ट गेटिंग क्लोजर टू योर सक्सेस। तो नेवर स्ट्रेस योर सेल्फ। जो जेई में 16 घंटे वाली बात थी, अगर 16 घंटे वाला एप्टीट्यूड है, उतना स्ट्रेंथ स्टैमिना है, देन गो अहेड विद इट। अगर सिर्फ 6 घंटे का है तो उतना करो, पर जितना भी करो be very honest with yourself, I would say। ये this has been one of the major learning in my process कि just be very honest and own up to your mistakes। तो जब भी whenever you will prepare, you will realize कि जब भी आंसर राइटिंग या कुछ भी करोगे, देयर the ultimate answer to every question is कि जो भी स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो उसको मॉनिटर करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, फीडबैक लेंगे और फिर उस पर इम्प्रूव करेंगे। I guess that is what we should be doing in our lives। अगर कोई भी कभी भी फेलियर आता है या फिर कभी भी कोई भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, या पढ़ने का तरीका है जो भी तुमने 5 या 6 घंटे का सोचा है, 16 घंटे का सोचा, वो नहीं हो पाता है, तो सेट बैक, असेस इट कि ये नहीं हो पा रहा है, अच्छा और क्या कर सकते हैं, कैसे इसको फ्रूटफुल कर सकते हैं। उसको अपने प्रोसेस को देखो, मॉनिटर करो कि इसे अच्छे से हो पा रहा है, कि यू आर एबल टू गो अहेड विद इट, दिस इज योर ओन स्ट्रैटेजी, एंड जस्ट कीप ग्रोइंग इन द प्रोसेस कि ठीक है और बेटर कैसे कर सकते हैं और इसको प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। सो देयर इज नो सच पैटर्न, सबकी स्ट्रैटेजी यूनिक रहेगी, सबका तैयारी का तरीका एकदम यूनिक रहेगा। Okay, wonderful answer. And now we have a very interesting question. So the question is, how was your life at Lavasana? Okay, life at Labasna was quite good। College 2.0 types था, a lot of fun part, but this time थोड़ा सा because of COVID we had a lot of like curtailed classes, or you may say events।
जैसे कि भारत दर्शन वी कुड नॉट गो फॉर इट, और हम लोग ऐसे लॉकडाउन में ही रहे थे कैंपस में 10 वीक के लिए. बट देन अदरवाइज इट वाज अ वेरी वेरी गुड पार्ट और फेज ऑफ माय लाइफ. क्वाइट इंटरेस्टिंग. आई मेड न्यू फ्रेंड्स, और जो भी क्लासेस वगैरह हुई उन सब में आई गॉट ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज अबाउट टू कम. और जब तैयारी कर रहे होते थे तो देयर इज ऑलवेज सम आइडियलिस्टिक माइंडसेट कि ये कर लेना है, वो कर लेना है. और जब when the lectures happened and like when the guest speakers came, and then when they told about the kind of impact that we can make if we like are very righteous and if we do our job dutifully, so all that was a very good learning process altogether. And that is at the same time hectic also. You have to wake up at 5 a.m. in the morning. Yes, kind of, you can say, because like I'm not a morning person at all, but then by the end of it, I started liking it. वो सुबह में पोलो ग्राउंड तक जा करके एक्सरसाइज वगैरह करना. एंड देयर वर ऑलवेज सम ट्वीक्स टू इट आल्सो. कभी कभी उन सबको भी यूज करते थे, बट देन इट वाज ऑल टुगेदर अ वेरी फन पार्ट. Okay, wonderful. Uh, so we have one more question. Uh, the person is saying, from a software developer to an IAS officer, ma'am, you have outdone yourself. I am also learning development and I am realizing that this isn't my call. But these insecurities about internships and a secure job is stopping me to do what I really want to do. How did you manage your insecurities? ओके, सो लाइक दिस इज अ क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में आता होगा जो ये तैयारी करने के लिए आ रहा है, या फिर नॉट दिस प्रिपरेशन, आई गेस कोई भी ऐसी चीज जिसमें रिस्क ज्यादा होता है. तो एंड वी आर ऑलरेडी इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस. एक बबल क्रिएट हो चुका होता है हमारे आसपास जिसमें सब कुछ सेट है, एंड देन वी break that bubble and we enter into a zone that is like which is not much ventured. So definitely insecurities आती हैं, but then as I told कि और जब भी ऐसे इश्यूज आते थे, जब भी ऐसा थॉट प्रोसेस होता था कि आगे क्या होगा, कल कुछ कर पाएंगे कि नहीं, सो आई ऑलवेज थॉट ऑफ माई कोर मोटिवेशन कि क्यों आए थे. ऑलवेज नो अपने आप में हमेशा, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे बी इट की पैसे के लिए है या प्रेस्टीज के लिए है, या फिर यू वांट टू लाइक अपने फैमिली को कुछ अच्छा एक प्रूव करना है, फ्रेंड्स को प्रूव करना है, किसी और को प्रूव करना है, कोई भी रीजन हो सकता है. जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद योर रीजन, विद योर ओन कोर मोटिवेशन कि ये करना है. जैसे कि ये भी हो सकता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बहुत बार ये भी एक रीजन होता है. तो जो भी अगर आपका एक रीजन है, बी वेरी ऑनेस्ट विद इट कि ठीक है, इसके लिए है, इसीलिए तैयारी करनी है, तो इनसिक्योर होने जैसी कोई चीज नहीं है. अदर देन दैट, मैं जैसे कि आई विल टेल यू कि देयर वर टाइम्स व्हेन आई हैड लाइक एक्सट्रीम लोज और आई हैड टू फेस सम काइंड ऑफ एंजाइटी इश्यूज. तो उसमें आई वाज वेरी क्लोज टू 3-4 people in my life, like the seniors and friends from Roorkee only, from my job, जो ऐसे they always had my back, who always told me कि ठीक है, आज give up मत करो, just एक दिन और effort करो, और maybe give up another day. तो always have such kind of people in your life, और don't lose hope. There is this very good lines that I've come across, जो है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है. सो आई वुड से जस्ट डोंट गेट होपलेस इन दिस प्रोसेस कि ठीक है कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है फेलियर्स ही तो आ रहे हैं, नाकाम ही तो हो रहा है. जस्ट डोंट कहते हैं ना कि एकदम होपलेस मत हो जाना, डोंट गिव अप. और जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, मैंने कहा है कि एक प्लान भी तो रहता ही है ना. जैसे इफ यू आर गोइंग फॉर अपने डेवलपमेंट, अगर तुम डेवलपर वाला सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली अगर प्रोफाइल में हो और उसकी तैयारी कर रहे हो, तो यू नो कि यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, जीमैट दे सकते हो. तो ये सब चीजें एक बार रहती हैं अगर दिमाग में, तो जो तुम्हारा करंट वो है तैयारी वाला फेज है, उस पे यू कैन गिव योर 100%.
there is one more question in this question only. That how to prepare if I am doing a job. Okay, so with job, I may not be the right person to tell about it because I had to quit my job to start with this. But then again, जो तैयारी अगर कॉलेज में रह करके जैसे तैयारी कर रहे थे, वही चीज उसमें भी आ जाएगी क्योंकि देन 24 आवर्स एक ही चीज पे ना देख करके यू हैव टू डाइवर्ट योर अटेंशन. इसमें वही कर सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बिकम्स वेरी क्रूशियल इस चीज में क्योंकि व्हेन आई हैड लाइक माय 24 आवर्स फॉर दिस प्रिपरेशन तो उसमें मेरा कोई भी एक शेड्यूल हो सकता था कि सुबह पढ़ लिया, रात को पढ़ लिया, पर व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब यू नो कि इतना टाइम फिक्स है जॉब आवर्स के लिए, उसके बाद इतना टाइम बचेगा, तो उसको वो वहां पर एक चीज एक फिक्स हो जाती है, तो वहां के बाद यू हैव टू लाइक मैनेज एवरीथिंग अराउंड इट. तो अगर जॉब भी कर रहे हो तो यू कैन टेक आउट 3 to 4 आवर्स डेली अपने प्रिपरेशन के लिए. एंड बिलीव मी, जब जॉब हम ऐसा कर रहे होते हैं, जब हम जॉब में होते हैं और फिर हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि देन वी गेट मोर सीरियस अबाउट दिस प्रिपरेशन क्योंकि तब हमें लगा पता ही होता है कि बस ये 3 ही 4 घंटे जो हमारे पास हैं जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज फिर उसके बाद टाइम नहीं है, फिर कल कुछ काम होगा. तो वो 3-4 घंटे अगर अच्छे से दे लिया फॉर अ ईयर और 2, आई गेस यू विल बी गुड टू गो. एक अच्छा बेस बन जाएगा और उन 3-4 जब भी यू हैव लिमिटेड टाइम एंड टाइम कंस्ट्रेंट है और जैसे अगर पढ़ाई में रटने में अगर उतना ही मतलब एक लिमिटेड वो रहेगा क्योंकि नौकरी का भी एक आपके पास प्रेशर है, तो उसमें ऑलवेज हैव योर मटेरियल्स वेरी सॉर्टेड कि बस इतनी ही चीजें पढ़ना है, इतने टेस्ट सीरीज लगाना है, ऐसे हैव यहाँ पर ऑल योर स्ट्रैटेजी, योर प्लान, योर टाइम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. तो उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना, डोंट वॉन्डर ऑफ. वो वाली लिबर्टी नहीं आएगी कि आज ये मटेरियल पढ़ लिया, कल वो मटेरियल पढ़ लिया. डोंट डू दैट, अदरवाइज 1-2 साल विल बी एनफ फॉर दैट टू. Okay, there is another nice question. Yes, I'm here. There is another nice question that what was your feeling when the results were out? So when the results were out, actually I was watching some movie. तो होता ये है कि जब भी इन पूरे 3 साल में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो हर बार जब भी पीडीएफ देखती थी मैं, तो वो देयर वाज सम काइंड ऑफ शिवर, सम काइंड ऑफ एंजाइटी कि पता नहीं नाम होगा लिस्ट में कि नहीं. और एवरी टाइम आई यूज्ड टू फाइंड माय नेम, जैसे प्रीलिम्स के बाद अगर लिस्ट में नाम आया था और मेंस के बाद जब लिस्ट में नाम आया था, तो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ feeling. But this time I was watching some movie and I already started getting messages, congratulations and all. Then I realized okay, results are out and my name is somewhere in the result. I checked the PDF and very funny thing happened. Like I called my family and friends ki I cleared and I told them ki I guess I scored 16. They said कि check कर लेना एक बार वापस से 16 है कि 160 है. So it was, a kind of a surreal experience for everyone. How could it happen? Because in this process, एक दिन पहले तक एग्जाम के एक दिन पहले तक you are practically no one. बस you are just an aspirant जो कि बस तैयारी कर रहा है, नोट्स बना रहा है, आंसर्स लिख रहा है. उसके एक दिन बाद you just become the strategy master कि सबको स्ट्रैटेजी बता रहे हो. So that was that switch, I guess. Otherwise, इस preparation में I've seen many people who are much more, knowledgeable and talented and who know a lot of stuff. So, ये सब एक चीजें होती हैं that I always remembered and that actually kept me very humble even after, clearing this examination, knowing कि ठीक है, it was great luck for me that I cleared, but there are many people who are toiling hard and like who are even more deserving. So, yes, it was a very surreal experience at that moment. Wonderful. So I think all the questions are we have covered all the questions. One last question: how is your life going after becoming an IAS? Okay, so currently I am undergoing district training. I'm
here in Rajasthan in Udaipur, and I've been given the charge of SDM in a block in a tehsil Jhadol. So I'm totally loving this thing. Or things that I had in mind ki working in the social sector and the kind of challenges I would be facing, वो सब हो रहा है यहाँ पर. Currently there is a vaccination drive that is going on. और अब जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं एग्जामिनेशन में about the various schemes. So I'm just looking after their implementation and I'm trying to understand how the administration works and I'm trying वो सारी चीजें कर रहे हैं जो आंसर राइटिंग में करते थे कि to reach out to people, try to understand their issues, their grievances, and mostly to work according in their own cultural setup. Do not impose your own actions or your own decisions on them. So it's a very lovely, very enriching training process that is going on currently. It's I guess it's worth it, like worth it shot to anyone जो भी तैयारी करने का सोच रहा है. This job offers you so much. So अगर कोई भी जो तैयारी कर रहा है definitely थोड़ा बहुत उसके back of the mind एक रहेगा ही, एक फैक्टर रहता ही होगा कि you have to do something for the country. And believe me, this service gives you that opportunity. There are so many fields to touch upon, so many sectors जिसमें कुछ भी थोड़ा सा भी अगर अच्छा भी काम करोगे यू विल डेफिनेटली मेक सम डिफरेंस. और आई गेस दिस ये इस तैयारी या फिर जो इसका एक आउटकम है वो तैयारी या जो भी अपना एक स्ट्रगल रहता है वो पूरा वर्थ इट कर देता है उसको. सो आई वुड जस्ट से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. और जस्ट बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ इन द प्रोसेस कि जितना भी टाइम देना है उसको बस अच्छे से देना, दिल लगा करके देना. एंड एट द सेम टाइम कीप सम बैलेंस, कीप फोकसिंग ऑन अदर स्टफ ऑल्सो. एकदम इसमें ऐसे मत लग जाना कि होपलेस ही हो गए आखिरी तक. कुछ अच्छी पोएम्स पढ़ते रहना. लाइक आई हैड फोकस्ड ऑन सम काइंड ऑफ तैयारी के टाइम पे मैं वैसी पोएम्स पढ़ती थी दैट हैड लाइक द जॉनर ऑफ at the genre of valor and courage, वो वीर रस जिसे कहते हैं. तो वो सब that constantly kept me motivated in the process. तो I guess all the very best. सभी मचाऊ लोगो, अच्छा कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है. Okay, that was a wonderful answer. And let us have one last question, and after that you can give your last piece of advice. The question is, how do you find the job of IFS, Indian Foreign Services? Acha, foreign services. It's a very good like profile. It's a very good service. I guess you get to represent India, you know, in the international forum, and the kind of the dynamics are changing. Abhi we are an open economy, and the kind of the geopolitical situations are happening. India plays a very pivotal role in all kind of the geopolitical decisions, I would say. So ab this service is gaining all the more importance. So every सर्विस, जैसे अगर तुम फॉरेन सर्विस की बात करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव की, पुलिस सर्विस की, एवरी सर्विस हैज इट्स ओन पर्क्स एंड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. तो उस बेसिस पे फॉरेन सर्विस इज अ वेरी गुड प्रोफाइल, वेरी गुड सर्विस. यू गेट टू ट्रैवल अ लॉट, यू गेट टू रिप्रेजेंट इंडिया. और अभी तो इतना ज्यादा डायनेमिक और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है इसका कि दिस सर्विस will like garner all the more significance in the coming years. Okay, so they do they get a lot of foreign trips? Like this sounds a funny question, but still someone is asking. Foreign ही रहना होता है. I guess foreign service है तो foreign ही रहना होगा ना. Okay. All right. So you get to like 10-15 years. There is you stay in foreign in different countries as working in the embassy. और उसके बाद I guess you get the chance to come back to India and work in the foreign ministry here, the Ministry of Foreign Affairs. So I guess there is a mix and a balance of both. Okay, wonderful. So at last,
do you have any memory of IITR you would like to share, or any piece of advice, the last piece of advice you would like to share? IITR memory, as I had already said कि जो लोग अभी कॉलेज में भी तैयारी कर रहे हैं, वही मैंने बोला है कि make memories there. College life would ultimately remain the best part of your life. जो भी Actually, दोस्त बना we रहे are. हो, जो भी मजे कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, whatever. Hello? Hello. Yes, ma'am. I was saying that actually we all are at our homes right now from the last 1.5 Oh years. God, yes. Yes. I got to know this. I had this one more talk. ये alumni cell वाला ही एक talk हुआ था, I guess in Yes, December or podcast. sometime around that only, and I got to know. हाँ. So I really pity you guys. That is all I can say. But these are very challenging times, very challenging times, and we are going through a lot. और ठीक है, in these times, if we are like sacrificing a lot अगर अपने college और उन सब पे, तो in these unprecedented times, what we can do, I guess यही best है हमारे लिए, to remain safe. और ठीक है, जब फेयरवेल के टाइम या कभी भी ना पोस्ट कोविड वर्ल्ड जब मिलोगे, तो आई गेस तब और भी ज्यादा आई गेस मजे कर पाओगे, कि ठीक है, जो भी टाइम तुम लोगों का पुराना नहीं अच्छे से इसमें रह पाए हो. आई गेस आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस. I just can say कि just be brave enough, and everyone is going through this. A lot of things have been dismantled and a new structure has come up. So I guess you can only brace yourself for it. Okay. So with this, I think we can end this meeting. So Okay. So it was like fun talking to you guys. बढ़िया है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना. और अभी अगर घर पे बैठे हुए हो तो आई गेस और भी टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए. और घर पे हो तो हाउ आर थिंग्स गोइंग, लाइक जो अपने वो सेक्शंस होते थे, हॉबी सेक्शन में जो इतनी चीजें होती थी, वो आर यू गाइस डूइंग समथिंग वर्चुअली, ऑनलाइन कुछ कर रहे हो? like out of 4 to 5 groups, 1 or 2 groups are active, the cultural groups. अच्छा. Yeah. अच्छा, so like what are you doing? वो ड्राम्स वगैरह वो लोग तुम लोग ऑनलाइन वगैरह कुछ कर रहे हो उसमें? Yes, they are doing. बट डेफिनेटली मैं वही बोल रही हूँ ना कि कुछ भी हो जाता है, वी फाइंड सम वे आउट. अपन ढूंढ ही लेते हैं कि ठीक है, कुछ ना कुछ करके विल सर्वाइव दिस, विल गेट थ्रू दिस. सो जो भी है, जैसा भी टाइम चल रहा है, इसमें बस कोशिश करो कि सब जहां पर भी हो सेफ रहो, और एवरीवन जस्ट गेट वैक्सीनेटेड, प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना. एंड दिस टू शैल पास, नॉर्मल टाइम आएगा. आई होप कि जो लास्ट ईयर में है, दे गेट सम टाइम टुगेदर. और कॉलेज इज अ ब्यूटीफुल टाइम. कॉलेज में रह करके फिजिकली या वर्चुअली जैसे भी होगा, बिकॉज यू ऑल आर कनेक्टेड, सभी दोस्त हैं वहां पर. सो हैव फन. कम से कम एक तुम लोगों की एक अच्छी कंपनी तो है दोस्तों की, क्योंकि होता क्या है कि आफ्टर कॉलेज कोई ना कोई कहीं किसी जॉब में चला जाता है, एंड देयर लाइक अ लॉट ऑफ paths, they diverge. तो अभी कम से कम there is a very cohesive group. The events are going on virtually भी. Try to enjoy them. और extra जो time मिल रहा है, अगर preparation का सोच रहे हो तो उसके लिए भी थोड़ा time दे देना. All right. So with this, we end our session of ACT Chapter 1, Talk 2. Thank you so much, ma'am, for being a guest of honor. And at the end, I would like to also thank the participants, which was around 170, and that was a huge participation. Thank you, all of you, for the participation. I would also like to thank Dora office and our Dora sir, Professor Partha Roy. Thank you so much, sir, for your coordination.
And I think now we can end this meeting. Have a good day. Sure. Bye bye. Take care. All the best. Same to you.